जी, अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। हम लोग कवर कर रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। Respiration is defined as the biochemical process wherein the living cells of an organism produce energy by taking in oxygen and liberating the carbon dioxide from oxidation of complex organic substances. ये है प्रोसेस रेस्पिरेशन का। इसमें दो स्टेप्स है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, ये इस तरह अभी मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया है कि प्रोसेस किस तरह होता है। इनहेलेशन में जो है डायफ्राम फ्लैटन होगा, और जो ये एक्सहेलेशन है इसमें जो है ये कर्वी होगा, और ये ब्रीथ्स हैं, ये लंग्स हैं, और ये डायाफ्राम है, इसमें कॉन्ट्रैक्टेड है। ठीक है, और जिसकी वजह से प्रेशर जो है अंदर ज़्यादा है, बाहर कम है, और अंदर से जो बाहर को एयर मूव करेगी, और यहाँ पे एक्सपेंड हो गया लीवर, लंग लिव्स एक्सपेंड हो गए, तो अंदर प्रेशर जो है वो कम है आउटसाइड इन्वायरमेंट की निस्बत। तो क्या है, बाहर से एयर जो है वो इनसाइड मूव करेगी। आगे है, what is respiration? Respiration is the metabolic process that occurs in all organisms. It is considered as a biochemical process that occurs within the cell of organism. In this process, the energy ATP, which is adenosine triphosphate, is produced by the breakdown of glucose, which is further used by cells in various functions. Every living species, from a single cell organism to dominant multicellular organism, goes through respiration. This produces ATP, which supplies the energy that cells need to do work. When they don't get enough oxygen, the cell uses anaerobic respiration, which does not require oxygen. Purpose of cellular respiration: all cells need to be able to obtain and transport energy to power their life function. For cell to continue the living, and they must be able to operate essential machinery such as the pumps in their cell membrane, which maintain the cell internal environment in a way that suitable for life। मतलब क्या है कि जितने भी पंप्स हैं या मतलब जितने प्रोसेसेस होते हैं बॉडी में जिसके लिए एनर्जी रिक्वायर होती है, उसके लिए बॉडी को एनर्जी बनाने की, एनर्जी प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी जो है वो हाई एनर्जी सोर्स है। इसमें फॉस्फेट होता है, वो भी ये क्या किस तरह एक्ट करता है? इसमें एटीपी ने एडीपी में कन्वर्ट होना है, और जो फॉस्फेट है वो हाई एनर्जी है, और उससे body को एनर्जी मिलती है। The most common energy currency of the cell is ATP. A molecule will store a lot of energy in its phosphate bond। ठीक है, जो मैं अभी आपको बताया। These bonds can be broken to release that energy and bring about changes to other molecules such as those needed to power cell membrane pump। ठीक है, अब हमारा है नेक्स्ट है, इसी का है पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन का। Because ATP is not stable over long period of time, it is not used for long-term energy storage. Instead, sugar and fats are also used as long-term form of storage. The cell must constantly process those molecules to produce new ATP. This is process of respiration. The process of aerobic respiration produces a huge amount of ATP from each molecule of sugar. In fact, each molecule of sugar digested by a plant or animal cell yields 36 molecules of ATP. By comparison, fermentation usually only produces 2 to 4 molecules of ATP. Anaerobic respiration process used by bacteria and archaebacteria yield smaller amount of ATP, but they can take place without oxygen। ठीक है, ये लाइन आप स्किप कर दें। आगे है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। टू टाइप्स हैं, एरोबिक है और एनाएरोबिक है। एरोबिक में क्या होगा? ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी, और एनाएरोबिक होगा जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
Aerobic respiration, it is type of cellular respiration that takes place in the presence of oxygen to produce energy. It is type of cellular respiration that takes place in the presence of oxygen to produce energy. It is continuous process that take place within the cells of animal and plants. This process can be explained with the help of chemical equation. क्या होगा? ग्लूकोज है, ग्लूकोज में ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या होगा? एटीपी, मतलब स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए भी हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, वो भी हम एटीपी से ही लेते हैं, ठीक है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड विच इज सिक्रेटेड आउट प्लस वाटर प्लस एनर्जी। वाटर भी यूज होगा, एनर्जी भी यूज होगी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा? It is type of cellular respiration that takes place in the absence of oxygen to produce the energy. The chemical equation for anaerobic respiration is glucose जो है अल्कोहल में कन्वर्ट होगी और कार्बन डाइऑक्साइड एटीपी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनारोबिक रेस्पिरेशन की इक्वेशन है और वो एरोबिक की। अब एरोबिक वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन, इनका difference क्या है? It aerobic respiration occurs in the presence of oxygen, while anaerobic respiration occurs in the absence of oxygen. और aerobic में क्या होगा? Food material are completely oxidized to release carbon dioxide, water and energy. Food materials are incompletely oxidized to release alcohol, carbon dioxide and energy. और एरोबिक के लिए sufficient amount of energy is released, anaerobic में a small amount of energy is released. और aerobic take place in all organisms, anaerobic take place in only few organisms like yeast and in muscles of human beings जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर नहीं होती वहाँ पे। और एरोबिक में enzymes responsible for this process are found in the mitochondria, और जो anaerobic है उसमें enzyme responsible for this process are found in protoplasm. Are there similarities between aerobic and anaerobic respiration? In aerobic respiration, energy is produced by the breakdown of food like glucose. In anaerobic respiration, energy is also produced by the breakdown of food like glucose. और aerobic respiration में क्या है? Aerobic respiration take place in the cells of the organism, while anaerobic respiration take place in the cells of organism. आगे हम लोगों ने पढ़ना है phases of respiration in an organism. Respiration occurs in the cytosol and around the plasma membrane in prokaryotic cells. Cytosol क्या है? It is the aqueous component of cytoplasm of the cell, within which various organelles and particles are suspended. ठीक है, ये एक्वस कंपोनेंट है साइटोप्लाज्म का, अंदर का जो कंपोनेंट है उसको साइटोसोल बोलते हैं, जिसमें वेरियस ऑर्गेनेल्स और पार्टिकल्स जो है सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। और अब ये कहाँ कहाँ होती है? साइटोसोल में एंड अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इन यूकैरियोटिक सेल्स respiration take place in mitochondria, which is also considered as powerhouse of the cell, ठीक है। आगे क्या है? This process is very much similar to internal combustion of car engine, wherein organic compound and oxygen go in while water and carbon dioxide comes out. The energy that is liberated power the automaton, ठीक है। There are three phases of respiration. क्या है? Glycolysis है, citric acid cycle, which is also called as Krebs cycle, and the third one is electron transport chain. ये है प्रोसेस है रेस्पिरेशन का। ये इसके थ्री स्टेजेस है। ये फर्स्ट वन है, ये ग्लाइकोलिसिस है, मतलब ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन है, दो एटीपी इसमें यूज करने हैं और वो कन्वर्ट हो जाएंगे NADH में। तो ये ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो रही है उसके साइटोसोल में,
और 4 एटीपी जो है वो जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, सेकंड स्टेप है ये, इसका क्रैब साइकिल आ जाता है, ये सिट्रिक एसिड साइकिल आ जाता है, जिसमें जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन से जो है प्रोड्यूस हुआ है पायरुवेट, दो पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटर होंगे क्रैब साइकिल 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 में, सॉरी, और ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, कितनी 2 एटीपी ये प्रोड्यूस करेंगे। और नेक्स्ट जो है साइकिल वो है ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है, इसमें मतलब वो जो एडीपी है वो एटीपी में कन्वर्ट होगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है फास्फेट वो एंटर हो जाएगा एडीपी में और वो एटीपी बन जाएगा, और जो नेट एटीपी है हमारे वो होंगे 38। ठीक है, मतलब टू जो है क्रैब साइकिल से और टू ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस में फोर प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन टू जो है वो यूज भी हो रहे हैं, इस वजह से नेट टू हो गया। तो 34 जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से, दो क्रैब से और दो ग्लाइकोलिसिस से, तो टोटल क्या हो गया 34। और नेट हार्वेस्ट जो है जो यूज हो गए हैं वो है 38, सॉरी 38 जो है वो टोटल है जितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। आगे है सेलुलर रेस्पिरेशन स्टेज वन, which is called the glycolysis. The first stage of cellular respiration is glycolysis. It takes place in the cytosol of cytoplasm. ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको बताया कि साइटोसोल क्या है। ये साइटोप्लाज्म का एक्वस कंपोनेंट है जिसमें ऑर्गेनेलिज और पार्टिकल्स जो है वो सस्पेंडेड होते हैं। वहाँ पे जो है ये प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सॉरी, ग्लाइकोलिसिस होगा। और ग्लाइकोलिसिस के स्टेप्स में है क्या, सबसे पहले जो है स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, उसको सबसे पहले स्प्लिट आउट करना है। The word glycolysis means glucose splitting, which is exactly what happens in this stage. ठीक है, ग्लाइकोलिसिस से भी ग्लाइ से ग्लूकोज, लाइसिस मतलब उसका ब्रेक डाउन, तो इसके वर्ड से ही मतलब अंडरस्टूड है कि ये क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज स्प्लिटिंग। Enzymes split a molecule of glucose into two molecules of pyruvate, also known as pyruvic acid. जो एक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, in the presence of enzyme produce two molecules of pyruvic acid or pyruvate. This occurs in several steps. और नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, मतलब ग्लाइकोलिसिस का रिजल्ट क्या हुआ, मतलब हमें इसका फायदा क्या होता है, उसमें यही आएगा कि energy is needed at the start of glycolysis to split the glucose molecule into two pyruvate molecules, मतलब हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, वो कहाँ से आती है, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, मतलब 2 एटीपी यूटिलाइज करेगा सेल टू फॉर्म टू स्प्लिट द ग्लूकोज एंड टू फॉर्म द 4 एटीपी मॉलिक्यूल। और नेट कितना होगा 2, क्योंकि 2 यूज हो गया और 2 हमारे पास बना है। ठीक है, मतलब नेट इस वजह से कि हम लोगों ने टोटल एटीपीज कैलकुलेट करने हैं ना, तो इस वजह से हम नेट अमाउंट लेंगे। These two molecules go on to the stage 2 of cellular respiration, मतलब वो जो आगे है नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रैब साइकिल, उसमें यूटिलाइज हो जाएंगे। The energy to split glucose is provided by two molecules of ATP. As glycolysis proceeds, energy is released and energy is used to make four molecules of ATP, और ठीक है, एनर्जी इज रिलीज एंड मतलब वही जो भी आपको बताया 4 एटीपी बनेंगे, लेकिन नेट कितना होगा 2। एज द रिजल्ट देयर इज अ नेट गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज high energy electrons are also transferred to the molecules of NAD plus to produce two molecules of NADH. This is also an energy carrying molecule. NADH is used in stage 3 of cellular respiration to make more. ये है इसका प्रोसेस, ये अभी भी मैंने आपको बताया। ग्लूकोज की ग्लाइकोलिसिस हुई इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एटीपी। ठीक है, और आगे ही हमारा नेक्स्ट स्टेप है विच इज द कन्वर्शन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द पायरुवेट और पायरुविक एसिड, और उसकी जो है फर्मेंटेशन होगी तो लैक्टिक
और इथेनॉल प्रोड्यूस होगा, मतलब इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, उसकी ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और फिर वो क्रेब्स साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्रेब्स साइकिल के बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज होगी और एंड पे हमारे पास एटीपी प्रोड्यूस हो जाएगा। मतलब ये स्टेप क्या था हमारा, ग्लाइकोलिसिस था। ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ 2 एटीपी, और इसमें 4 एटीपी मॉलिक्यूल जनरेट करेंगे और नेट गेन कितना होगा, 2 एटीपी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रैब साइकिल का और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ। ये हमारा लेक्चर कवर हो गया। ओके, थैंक यू।